بدامنی ایک لعنت ہے اور میں کہتا ہوں ہمیں بدامنی سے نفرت ہے، جو کہ انسانیت، انسانی اقدار کی پائمالی، جو ماحول بدامنی کا شکار ہوتا ہے معاشرہ، وہاں قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ذمہ دار ہاؤس ہے اور ذمہ دار فلور پہ ہمیں باقاعدہ ڈیپلی اس پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ آج بلوچستان جس کرب اور جس آگ میں جل رہی ہے، یہاں ہم صرف ایک ادارے کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں، بلکہ ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں اور انٹرنیشنل اور نیشنل صورتحال کو دیکھیں۔ انٹرنیشنلی بلوچستان کو جس پراکسی وار کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہاں جو پراکسی گروپس پالے گئے ہیں مختلف ناموں سے، چاہے مذہب کے نام پہ ہوں، چاہے قوموں کے نام پہ ہوں، چاہے مختلف ڈکیتی، ٹارگٹ کلنگ، یہ ساری چیزیں، اس سے ہم سب کو مل کر اس پورے پراکسی وار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سیاستدان ہو یا بزنس مین ہو، مزدور ہو یا دکاندار ہو، سارے ایک سکون کی زندگی چاہتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے ایک پرامن ماحول ملے، لیکن ہم یہاں پہ بھی ان چیزوں کو کبھی نہ بھولیں جو بلوچستان پہ جس انداز میں وار کیا گیا، جو ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، اسپیشلی میں ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں جو پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملہ ہوا، وہاں جو آئی تھنک کہ انٹیس پاس جو جوان تھے بھرتی ہوئے تھے پولیس میں، 100 سے زیادہ جوان بیک وقت شہید ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، صوبے کی کمر توڑ دی گئی۔ یہ وہ کریم تھی جن نوجوانوں کو میرٹ پہ بھرتی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں آپ دیکھیں، سیکٹیرین کلنگ، ٹارگٹ کلنگ، 8 اگست کا واقعہ 2017 کا جو ہماری پوری کریم تمام وکلا برادری کو شہید کیا گیا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم صوبے کے اجتماعی مفاد کی بات کریں۔ دیکھیں، ہم مذمت کرتے ہیں جہاں پہ سستی، کوتاہی، کمزوری ہوئی ہے، جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے ذمہ داروں کو شہید کرنا۔ بلکہ میں اسپیکر صاحب آپ کو بتاؤں، میرے پاس میرے صرف پارٹی کے 95 بندوں سے زیادہ کا لسٹ ہے جو شہید ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں تھا، جب سیاسی اختلاف رائے کہ میں عدم تشدد کا پیروکار ہوں اور میں عدم تشدد کا داعی ہوں، اس بات پہ ایک اختلاف رائے پہ یہ پراکسی گروپ آپ سمجھیں، دہشت گردی سمجھیں، اس سے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ واجب القتل ہو۔ کیونکہ میں قلم کا داعی ہوں، میں امن کا داعی ہوں، مجھے بندوق سے نفرت ہے، مجھے تشدد سے نفرت ہے۔ تو آج صوبے میں جو نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں بیک آواز ہو کے کہنا ہے کہ ہمیں تشدد سے نفرت ہے، ہمیں دہشت گردی سے نفرت ہے، چاہے جس نام پہ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو اور اسپیشلی قائد ایوان بیٹھے ہوئے ہیں، 2013 میں جب وہ وزیر داخلہ تھے، اس کو ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی ایکسپیرینس ہے، جس کرب کی صورتحال میں جو کہ یہ تمام ایریاز نوگو ایریا بنے ہوئے تھے، آپ سریاب سے موو کرتے تھے مستنگ ٹورڈز کراچی، خزدار، ضرور نہ ضرور دن میں 3-4 اغوا ہوتے تھے عام لوگوں کی، کاروباری طبقے کی۔ آپ سریاب سے سفر کرتے تھے ٹورڈ سپی، نصیر آباد، جعفر آباد، وہ بھی یہی ٹرک ڈرائیور تک کوئی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک جنگل کا قانون تھا، بادشاہت تھی، 3 حکومتیں قائم تھی۔
देखिए, हमें इस सरजमीन और इस सरजमीन के रहने वालों के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। आज सर हम क्यों रो रहे हैं इधर? देखिए, ये चीजें जब कोई तरीके से शुरू किए जाते हैं, चाहे मंशियात के अड्डे हों, कोई भी मंशियात फरोश वो खाली हाथ नहीं है, उसका कोई बैग है। कोई भी मुसल्ला जत्था, पुलिस, लेवीज वहां तक पहुंचता नहीं है। पहले आईजी साहब से लेकर मुतल्लिका डीपीओ, डीआईजी को फोन जाता है। देखिए, इस तरह हम हमको कायम नहीं कर सकते। ये हमारे लोगों के साथ ईमानदारी नहीं है। अगर किसी कातिल की, जिस तरह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि यहां तक पुष्टपनाही हो, जिनके मोर्चे अभी तक मौजूद हो, तो इससे जाहिर होता है कि उसके पीछे कोई कुव्वत है। मैं गुजारिश करता हूं कायदे ईवान से कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है। 2013 में जब स्टार्ट की, इसी पुलिस ने, पुलिस की जो मोराल को हुकूमत ने बुलंद की, इसी पुलिस ने क्रिमिनल एलिमेंट्स को बिल्कुल बुलडोज कर दिया। मैं एक मिसाल मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो प्रॉक्सी वार था आज भी जारी है। 2006 में ये जो शुरू हुई थी, 11 अजला सर बलूचिस्तान के तो बिल्कुल जल कर रह गए। खुजदार, अवारान, पंजगूर, खारान, मस्तुंग, कलात, तुर्बत, ग्वादर, ये तमाम एरियाज को आप देखते थे, कोई नहीं चाहता था कि मैं उन एरिया में आऊं। लेकिन जो एक मजबूत कमिटमेंट आई और एक बिल्कुल उसने एक सियासी गवर्नमेंट ने ऑन किया। आज मैं उम्मीद कर दूंगा कि ये हुकूमत, जिस तरह सीएम साहब के ऐलानात हैं और हमारे आईजी साहब भी मौजूद हैं, उसकी एक विजनरी पॉलिसी है। उसके तमाम रीजन में जितने हमारे डीआईजीज और मुतल्लिका ऑफिसरान बैठे हैं, उस सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। आज भी मैं कहता हूं कि हम सियासी लोग अपनी मुदाखलत को कम करें। सबसे पहले हम ये फैसला करें। दूसरी बात यह कि कल अगर फोर्सेस, पुलिस हो, लेवीज हो या लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने वाले इदारे हो, कहीं पे मूवमेंट करें, बयानात हमारे जारी शुरू होना होते हैं। उसकी वजह यह है कि ना मुतल्लिका ऑफिसर ऑन बोर्ड है, ना आम अवाम ऑन बोर्ड है, ना सियासी क़यादत। मैं आखिर में कुछ तजावीज़ रखता हूं कि सर एक और मुसीबत है। देखें, कल हम भी चिल्लाएंगे कि जी तमाम बेनंबर गाड़ियां बगैर रजिस्टर हैं। परसों भी पंजगूर में बाजार के दरमियान में एक टारगेट किलिंग हुई मोटरसाइकिल पे। सर, कुछ चीज़ों को हम टेम्परेरी बेस पे ले जाएं और क्रश प्रोग्राम के तहत ले जाएं, उन चीज़ों में बहुत सारा असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, 2014 से 2018 तक मैं बैसियत इलाका के नुमाइंदे के, बल्कि एक मीटिंग में मीर साहब, कायदे ईवान साहब मेरे साथ थे। हम पंजगूर गए सर, ऑल पार्टीज को बिठाया, ताजरान कमेटी को बिठाया, तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन को बिठाया। ये तमाम ऑन बोर्ड होकर जहां पुलिस कार्रवाई करता था, फिर कोई नहीं चिल्लाता था। और फिर एक फैसला ये हमने किया था कि जी, बल्कि पूरे सूबे, बल्कि हमने अपने जिले में आज भी अगर ये ऑर्डर पास हो जाए कि 1 महीने के अंदर, 45 दिन के अंदर तमाम इजला में, ठीक है गरीब सूबा है, सारे लोग, रोड नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, हर कोई शोरूम से कागजात वाला गाड़ी नहीं ले सकता है देहातों में, लेकिन वो जरूरी है अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन और लेवीज स्टेशन में जाके टेम्परेरी नंबर हासिल करे और एक टेम्परेरी नंबर प्लेट ले ले। 45 दिन बाद अगर किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे ये नंबर प्लेट नहीं हुई, उसको हम पकड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर एक सर जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में मेरे इलाके में, मैं आपको बताऊं, अभी अनोखे वाकया ये गुज़िश्ता 2 साल से सर हो रहे हैं। मेरे गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के घर पे रात को 2 बजे गए, पूरे घर का सफाया किया, जियो फेंसिंग कराई, नंबर आ गए, कोई कार्रवाई नहीं।
याहिया बलूच असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है, पंजगूर से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायर्ड जज हैं शायद। उसके घर पे उसके बूढ़े वालिदीन को बांध के उसके पूरे घर का सफाई किया। अब जमीयत के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल अजीज साहब, जो वो घर मौलवी हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब, जो एक के इंसान दोस्त शख्सियत थे, उसने पुरअमन माहौल की एक बुनियाद रखी। पंजगूर में आज भी हमारा इलाका कबायली इलाका नहीं है, लेकिन आज भी हमारी एक अमन कमेटी है। जहां कत्ल होते हैं हम सारे उसके साथ, जहां अगवा होती है हम ताउन करते हैं, वो अमन कमेटी के थ्रू वो सेहरा जाता है मौलाना रहमतुल्लाह साहब को। पिछले महीने उसके घर का सफाई कर दिया, जियो फेंसिंग भी किया। इसी तरह हमारे बलुचिस्तान के एडिशनल डायरेक्टर एमएसडी हैं डॉक्टर इस्माइल मीरवानी, उसके घर पे गए, फुल सफाई की, वहां पे भी जियो फेंसिंग में सारे नाम आ गए। मेरा ये तजवीज़ है कि ऐसी चीजें जब आती हैं उन पे पूरी तौर पर सर एक्शन होना चाहिए। मुतल्लिका एसएचओ जाके पकड़ता है, रात को उठाता है, दूसरे रात को बराबर करके मामला फिर छोड़ देता है। अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्रिमिनल जो ग्रुप्स हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं ये गुजारिश करता हूं कि जनाब कायद ईवान साहब, वाकई आप लोगों के मीटिंग्स होते हैं, मैं हर वक्त कोई मसला होता है अपने इलाके के डीपीओ से रब्ता करता हूं, कहते हैं जी आईजी साहब से वीडियो लिंक पे मीटिंग है। सर ये ठीक है, लेकिन जो डीआईजी जिस डिवीजन में बैठा हुआ है वो महीने में एक हफ्ता हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे और मॉनिटरिंग करे, और डिवीजन लेवल पे जो आपका मॉनिटरिंग सेल है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फाल करें। डेली बेसिस पर हर जिले की क्रिमिनल रिपोर्ट आना चाहिए। और जिस एरिया में आज भी हमारे पास वाफर मिकदार में लेवीज के चेक पोस्ट, लेकिन जो इंचार्ज है उसके पास सर वो एसएचओ के इख्तियार नहीं है, और बहुत सारे जगहों पे लेवीज, पुलिस, इवन एफसी की जरूरत हो, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर इनकी मुश्तरका कार्रवाई कराए। आज लेवीज के बंदूकों को ले जाते हैं, उसकी वजह यह है कि लेवीज वाला सिर्फ सोने के लिए गया है चेक पोस्ट पे। उसका बेहतर इलाज यही है कि उस लेवीज वाले को कन्विंस दें, वो अपने एरिया, उसका एरिया तयन करके दे दे, वो गश्त करे मुतल्लिका पुलिस एरिया में, जहां डेली बेसिस पर क्रिमिनल रिपोर्ट आती है, जहां होती है वहां पे महकमा कार्रवाई करे, किसी को खातिर में नहीं लाए, और बिल्कुल अलर्ट जारी करे कि ये जो मंशियात के अड्डे हैं, आज मैं आईजी साहब को गुजार करूं, कायद ईवान को, पंजगूर में किस तरह मंशियात सर बेचा जा रहा है। अड्डों पे पुलिस ने काम शुरू किया है। अब सर वो जो कुछ लोग हैं वो जो कचरा चुपते हैं, वो जो कबाड़ी के जो लोहे वगैरह वो नौजवानों को देते हैं विलेजेस में, शहरों में। अच्छा, वो जो देता है अब पैसे की जगह पे उसको पूरी देता है, हेरोइन का, इसका आइस का या क्रिस्टाल का, उसके जेब में पैसा नहीं होता है। ऐसे लोगों की सरकूबी की जाए तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक काबू पाई जाएगी। और जहाँ तक हमारे जमीयत के रहनुमाओं की शहादत है, खुजदार हो या नसीराबाद हो, इन पे सर पूरी कार्रवाई हो, और तमाम इलाकों में जो कत्ल गारतगिरी हो रही है उससे एक असर पड़ा है, लोग मायूस हो गए। कतई तौर पर हम पुलिस को टारगेट नहीं करते, क्योंकि पुलिस की हौसला अफजाई, पुलिस के जवानों की मोराल हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुलंद करें। बल्कि मैं हर चेक पोस्ट पे गुजरता हूं, मैं रुकता हूं, मैं उनको सलूट मारता हूं, उसका लेवल नहीं देखता हूं, सिर्फ मैं ये चीज देखता हूं कि उससे मेरे हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए बंदूक उठाया है, और उस शेर बच्चे को मुझे जरूर हौसला अफजाई करना है। हम सबको बैक आवाज होकर अपने पुलिस की हौसला अफजाई, फोर्सेस की हौसला अफजाई करना है। थैंक यू रहमत साहब। फैसल जमाली साहब। जमाली साहब, बिल्कुल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। थैंक यू स्पीकर साहब।
पहले तो सर मैं अपने मोअज़्ज़ज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी करारदाद पे हमारी हिमायत की और इसको विड्रॉ किया। बैठ के इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। दूसरी बात सर, जो मेन मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इरिगेशन। हमारे पास 2 कैनाल्स हैं, एक पट फीडर, एक खीरथर। पट फीडर जो है वो आपकी निकलती है गुड्डू से और खीरथर जो है वो आपकी निकलती है सखर बैराज से। 20 जून को सखर बैराज के गेट टूटे जिसमें 47, 44 और मेरे ख्याल में 36 है जो डैमेज हुआ। 47 इन्होंने कल लगाया है, 44 जो है उसको अभी भी बेंड है और सॉर्ट ऑफ उस टेम्परेरी उसका उन्होंने किया है। 20 जून और आज सर 26 जुलाई, 1 महीना 6 दिन हो गए।